Good morning, ma'am. So all of have done first four, few of them not done. It was been corrected in the test itself. Fifth one is also okay for most of them. Sixth, what is gap is okay. So regarding the mistake in the seventh question, what is fluid friction? See, bete, if the question is asked, what is fluid friction, you will not write कि this is a friction. पहले बताओ friction होता क्या है? It is a resistance force, है ना? Resist the motion of an object. Now, if it will resist the motion of the object in liquid and gases, then it is known as fluid friction. ठीक है? अच्छा, अब लिक्विड अकेला वाटर नहीं ले सकते आप. लिक्विड कोई भी हो सकता है. लिक्विड कैन बी gas, liquid can be water, liquid can be any liquid. Not only friction occur in the liquid, that is water. Liquid can be any liquid. ठीक है बेटे? सबसे पहले जब आपको व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन आए तो योर आंसर मस्ट कंसिस्ट ऑफ इट इज अ रेजिस्टेंट फोर्स. If you write it is a force of friction, that is we don't, the teacher doesn't know what is friction. तो आप बोलो जो resistance force है occurring in the liquids or the gases. Okay, so both points you will write. So then you have written correctly the factors, shape and the nature of the fluid you have written. So write 3 points why friction is necessary evil. Regarding this question, bete, Pragati, what is fluid friction is asked, then you will write this is a resistance force. What is friction? It is the resistance force that doesn't allow an object to move, isn't it? And when this resistance force occurs in liquids and gases, it is called fluid friction. What are you doing? It is a friction that come into play in the liquids and gases. So what is friction? We don't know what is friction. Second thing, the main mistake is you are writing it occurs in water. There is no one liquid. There is more than one liquid. There is water, there is alcohol. कोई भी liquid हो सकता है. It is not only the water one. ठीक है? Now the question was, जिसमें next में mistakes हैं. Write 3 points why friction is necessary evil. When this type of question is asked, then wait, I have to discuss the test. What they have done the mistakes. All the test has not been checked. जितने checked हुए हैं मुझे mostly ये mistakes मिली. अगर आपको friction necessary evil पूछा जाता है तो you will write, if they are asking 3 points, so you have to write 3 points of advantages and 3 points of disadvantages both. If you are writing only advantages 3, you will get 1.5 marks. If you are writing only disadvantage, then also you will get an 1.5 marks. You will write both the points, that is advantages, and this is necessary. Why it is necessary? Because it help in this. It help in walking. But at the same time, it will cause tear of the soles. Okay? It will help in writing with the chalk. At the same time, we can say it is the chalk is getting used up. So it has both advantages and disadvantages. So you will write 3 points of advantages and 3 points of disadvantages. Regarding the difference between plants and an animal cell, there was asked in the bracket, you have to write 6 points. First of all, the students are writing 3 points. If you are writing 3 points and there is asked for the 6 points, you will get 1.5 marks. Don't raise the hand, I will take your doubts afterwards. Okay? Let me complete my Jant and rhythm. Let me complete. ठीक?
1.5 मार्क्स। दूसरी, जब बेटे आपको डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट डज द डिफरेंस वर्ड मीन? अगर मैं बोलूं कि 2 बॉयज आर स्टैंडिंग, वन इज टॉल एंड अदर वन इज शॉर्ट, दैट इज डिफरेंस। मगर आप डिफरेंस में एक तरफ लिख रहे हो कि दिस बॉय इज टॉल, अदर इज हैविंग राउंड फेस, दिस इज नॉट अ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है किसी क्वालिटीज में कंपैरिजन करना। वो कैसे कंपैरिजन होता है? जैसे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में अगर है, तो अगर बोलोगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल है तो एनिमल सेल में नहीं है। एक तरफ आप लिख रहे हो प्लांट सेल में सेल वॉल है और दूसरी तरफ आप कुछ और पॉइंट लिख रहे हो, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे बेटे। अगर आप खुद आप देखो कि मम्मा बोले कि इन दोनों पिक्चर्स में आपको 2 पिक्चर्स ड्रॉ करके दे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस उस पिक्चर्स की हम कहेंगे इसकी आईज छोटी है, इसकी आईज बड़ी है, इसका नोज ऐसे, इसका नोज ऐसे है। आप एक तरफ आई का पॉइंट लिख रहे हो और दूसरी तरफ आप नोज का पॉइंट लिख रहे हो, तो आपने डिफरेंस नहीं किया। ये गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, साइटोप्लाज्म किसने कहा है आपको? साइटोप्लाज्म तो दोनों में होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग पता नहीं एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म है या प्लांट सेल में नहीं है। बेटे अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, उनमें ऑर्गेनेलिज नहीं फ्लोट करेंगी, तो उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे होंगी? साइटोप्लाज्म तो दोनों में है। फिर यू आर राइटिंग प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, चलो एनिमल सेल में नहीं है, एनिमल सेल में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स हैं, तो प्लास्टिड्स की फॉर्म ही है क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में डिफरेंस है कुछ? वी आर राइटिंग प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स की फॉर्म ही क्लोरोप्लास्ट है, तो ये तो सिमिलर डिफरेंस हो गया। या तो आप लिखो इट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट विच इज ग्रीन कलर, इट डजंट कंसिस्ट, ये तो डिफरेंस माना गया। हियर यू आर राइटिंग सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, yes, centrosome near the nucleus is present. Here you are writing cytoplasm is absent. That is why I am writing in the animal cell, it is absent in this, but यहाँ absent आप centrosome को ही करो, आप absent कुछ और कर रही जा रहे हो। जब भी डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेटे, डिफरेंस का मतलब है आप पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिटी डिफरेंशिएट कर रहे हो। अच्छा, एक डिफरेंस में किसी स्टूडेंट ने लिखा था these cells are autotrophic, these cells are heterotrophic। सेल नहीं बेटे, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको एनिमल और प्लांट में डिफरेंस नहीं पूछा गया, उनकी सेल्स में पूछा गया है। यस, तो आप इसमें बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हो। इसमें सेल वॉल है, इसमें प्लास्टिड्स है, इसमें सेंट्रोसोम है, इसका न्यूक्लियस पेरिफेरी में है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में है, इसमें बिग वैक्यूल होता है, वो सैप वैक्यूल होता है, द टर्म इज सैप वैक्यूल। ठीक है, हियर टर्म विल बी यूज, इसमें बड़े अगर वैक्यूल होंगे तो बहुत छोटे छोटे यूज होंगे। जब बेटे आप डिफरेंस लिखते हो, आपने इतनी बस जो आपको याद आ रहा है ना, जैसे डिफरेंस लिखा हुआ है, मुझे अभी याद आ रहा है कि हाँ जी प्लांट सेल में सेल वॉल है, और एकदम से मुझे याद आ गया हाँ जी एनिमल सेल में सेंट्रोसोम है, तो ये डिफरेंस नहीं है बेटे। सीबीएसई भी नंबर नहीं देती है, आप ऐसे लिखोगे यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मार्क्स। ठीक है, और एक ही पॉइंट को 2 पॉइंट्स बना के नहीं लिखना, then also you will not get any marks।
एग्जाम्पल इज नॉट कंसीडर्ड एज डिफरेंस। एग्जाम्पल है कि हमने एग्जाम्पल दे दी कि जैसे कि वो, पर उसकी भी तो करेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द मेन मिस्टेक्स विच द स्टूडेंट्स हैव मेड। यहाँ पे बेसिकली आपके कोई नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यहाँ पे ही कटे हैं, अदरवाइज तो आई थिंक ऑल हैव स्कोर्ड मार्क्स। और जिन्होंने, चलो जिनका है वो सब में सही नहीं है, तो ये आपको मिस्टेक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। यस, अब आप अपनी डाउट पूछो जो भी है। यस मैम, फ्लूइड फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में था कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। मैम इसका क्या आंसर है? it depend upon the बेटे shape, size, nature of the fluid, speed of the object। अब फ्लूइड ओके मैम। फ्रिक्शन में अगर आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी, वी हैव हर्ड इन द क्लास, कि जब आप कार से बाहर फेस निकाल देते हो और मम्मा कहते हैं कि फेस या बाजू नहीं निकालनी, तो अगर कार फास्ट चल रही हो तो आपका जो एयर का फोर्स है आपके ऊपर ज्यादा फास्ट लगता है, तो हम कहते हैं तब फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रही है ना। इन द सेम वे जब आप शेप, हमने शेप स्ट्रीमलाइन करी एरोप्लेन की या बर्ड्स की होती है, अगर आप शेप स्ट्रीमलाइन नहीं रखोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अगर लिक्विड आपका विस्कस है, गाढ़ा है, हनी से ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है, वाटर से हम इजीली चले जाएंगे क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया बेटे, नेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो यू कैन से स्पीड of the object, nature of the fluid, shape and size of the object। हाँ जी रिदा, what is the doubt now you are having? मैम मैंने ना प्लांट और एनिमल सेल के लास्ट पॉइंट में लिखा था दैट प्लांट सेल्स हैव नॉट वेल गॉगली बॉडीज एंड एनिमल सेल्स हैव वेल डेवलप्ड गॉगली बॉडीज, तो ये मेरा ठीक है? हाँ, they are known as actually better dictyosomes, but they have Golgi bodies। We can consider, try to use that kind of point। This is also a point, they are small Golgi bodies, they are known as dictyosomes। मैम एक्चुअली तभी याद नहीं आ रहा था क्योंकि हमें 4 पॉइंट्स ही करवाए हैं, तो ये मैंने प्लांट सेल आर हैविंग इज लार्ज इन साइज टू एनिमल सेल्स हैविंग स्मॉल इन साइज देन प्लांट सेल्स, मैंने ऐसे लिखा है कुछ, और बाकी 4 पॉइंट्स मैंने ठीक लिखे थे। ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं चेक नहीं किया, जितना मैंने चेक किया वो मैंने आपको बता दिया। चलो मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड, इसलिए थोड़े से हम पॉइंट्स करते हैं। ठीक है, तो हमने 1 2 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए। तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, ये 2 चीजें प्लांट सेल्स में। और पहले हम प्लांट सेल में क्या है, एक बिग वैक्यूल, मैं पहले बात करूं इसमें है क्या। और बिग वैक्यूल के कारण क्या है, न्यूक्लियस पेरिफेरी में है। इधर क्या है, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, इसके कारण जो है न्यूक्लियस सेंटर में है। हो गए, देखो इजी पॉइंट्स बेटे। पहले आप एक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देखा करो कि जो एक में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक, और
इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, इसमें पेरिफेरी में है, इसमें वैक्यूल है, इसमें नहीं है। अब उसमें क्या है, उसमें एक सेंट्रोसोम है जो इसमें नहीं है। ओके, how many points we have done? 1 2 3 4 and now fifth, and now 1 point is remaining. तो जैसे इसने कहा गोल्गी बॉडीज नहीं मिला, आई कैन टेक गोल्गी बॉडीज, यस यू कैन टेक द गोल्गी बॉडीज 1. ओके, तो और पॉइंट्स में यू कैन राइट about the plant cells are larger in size, usually larger in size, and animal cells are smaller in size. ठीक है, और क्या लिखोगे आप? बस so many बेटे plasmodesmata are present, plasmodesmata are absent, that is of the 9th standard. ठीक है, that is of the 9th standard, that is I am not taking that point. Otherwise, so many points according to 9th standards are there. Okay. So you can write plastids are there, cell wall is there, large vacuole is there. Because of this large vacuole, there is the arrangement of the nucleus is at periphery, and in case of animal cell, there is centrosome is there. Okay. You can write the point of plasmodesmata also. देखो बेटे plant cell में essence of sap होती है. अगर I want to explain you, तो एक सेल से दूसरे सेल तक कनेक्शंस होते हैं. जैसे एक सेल है तो दूसरे सेल तक कनेक्शन होना है कि हमारा एसेंस ऑफ सैप हो जाए. तो देयर आर प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके बेटे, यस सोमिल क्लियर. Okay, Golgi bodies. So there are so many Golgi bodies present in animal cells. In plant cells, there are very small. अगर देखा जाए तो इनको dictyosomes कहा जाता है. They are known as dictyosome. Yes, I am going to draw the diagram of the nerve cell. Now I am going to draw the diagram of the nerve cell. And then we will discuss more. So while drawing the nerve cell, you will draw the cytone first. Wait, like this. Let me make 4 edges for you. So this is cytone having dendrites. This is nucleus, and around nucleus there are present Nissel's granules. Here is cytoplasm. Yes, Jayant. मैम एक क्वेश्चन था, एक्सपैंड NMCG. मैम इसका क्या आंसर है? You haven't done, सबने करा है ये बेटे. You नो haven't मैम done. मुझे समझ नहीं
नो मैम। Why? मैम मुझे समझ नहीं आया। This is National Mission for Ganga Clean. National Mission to make for clean Ganga. ठीक है? This is National Mission for clean Ganga. Okay? So this is the Cytone part. Then there is, let me take somewhat central. Not looking central in here. Okay, bete. Now here you will draw like this smiling sheet. Nucleus. Okay. So what equals here. Either you can show the knobs like this, or you can show the knob like this if you want to show. Visible. Okay. So let me label now. Just see the labeling. Okay. So this is your, and this is the other part. So I'm labeling the upper part first and then showing you. So these are dendrites. This is nucleus. These are micelle granules. And this complete is known as cell body.
और साइटोन। ठीक, now come to the lower part. Sabji, I'll clear your doubt. So this lower part, let me label first. This is myelin sheet. See beta, the cell can be myelated or non-myelated. तो myelin sheet जरूरी नहीं होती बनानी, क्योंकि both type of nerve cells are present. They are myelated also, non-myelated also. ठीक है? This is the space here. It is known as node of Renvoyer. This is again nucleus. Yes, Jabji, why are you raising your hand? मैंने पूछना था कि प्लांट सेल में बहुत सारी छोटी गोल्गी बॉडीज होती है और एनिमल सेल में एक बड़ी गोल्गी बॉडी होती है। माइक पीछे करके बोलो बेटे दोबारा। मैं बोल रही थी कि जो प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी होती हैं और एनिमल सेल में एक बड़ी गोल्गी बॉडी होती है। They are less developed and they are known as dictyosome. प्लांट सेल में इनका दूसरा नेम दे देते हैं। तो हम डेवलपमेंट वाला भी लिख सकते हैं पॉइंट कि प्लांट सेल की जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होती। Let me complete. You can write it. They have dictyosomes. They have they have Golgi apparatus. The bodies are small. Otherwise, the main point of difference is this. These have cell membrane, cell wall doesn't have. They have large vacuole. They have no or small vacuole. They don't have plastids, nucleus in the center, and they have centrosome, and they have lysosomes. का भी इनका होता है कि the animal cells are more lysosomes than as compared to plant cells. You can write plasmodesmata point also बेटे, that plant cell consists of plasmodesmata, क्योंकि इसमें ascent of sap होना जरूरी है. In case of the animal cell कोई ascent of sap नहीं होता, that is why. Flood. Okay बेटे, so rhythm diagram is clear to you. Axon ending, and this is okay. So this is the main cell body cytone, and this is axon. ये जो एक के डेंड्राइट है, दूसरे की साइनेप्टिक नोब के साथ ऐसे पास आते हैं और बीच में दे रिलीज सम काइंड ऑफ केमिकल्स जो मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, तो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स तक मैसेज आते हैं. ठीक है, ओके. हाँ जी,
What Pragati is asking, let me see what was the question. बेटे फ्लड वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं था टेस्ट में, अर्थक्वेक वाला था. These 3 states in India where earthquake strikes. There is no flood wala question. So you are asking, that is why I am saying there is no flood question. बेटे earthquake strike देखो आपको states पूछी गई हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, असम है. Some of the students are writing cities. That is why I am saying कि questions क्या float कर रहे हैं. हाँ जी. Draw the diagram. The time is going to up. ठीक है. Jabji is writing several small Golgi bodies. Yes, 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 Jabji, you are very much right. कि जो प्लांट सेल है उसमें बहुत छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज होती हैं और वो छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज बन के एक डिक्टियोसोम, जो छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स कहते हैं. ठीक है. और जो एनिमल सेल्स में है उसमें एक बहुत बड़ा यूनिट होता है गोल्गी बॉडी का. ये पॉइंट सीनियर क्लासेस में ज्यादा आता है. दैट इज व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग दैट पॉइंट, बट चलो रिदम हैज रिटन देन आई हैव डिस्कस्ड. ओके. सो छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज मिलके आपकी बड़ी गोल्गी बॉडी बनाती है. इन केस ऑफ एनिमल सेल एक बड़ी गोल्गी बॉडी होती है. आप प्लाज्मोडेस्माटा का पॉइंट लिख लो, वो याद रहता है बच्चों को. प्लाज्मोडेस्माटा का पॉइंट क्योंकि उन्हें एसेंट ऑफ सैप करना होता है. यू कैन राइट. हाँ जी. एनी मोर यस रिदम, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यू वाज रेजिंग द हैंड. Ma'am, I have not raised my hand. Chalo, tomorrow is the last day and all the best for the exam and start doing preparation now.